Hello everyone, this is me Ankita and I welcome you all to the class. And our topic for today's class is ether. ठीक है और आज हम पढ़ने वाले हैं methods of preparations. Okay, how ethers can be prepared by using different methods. In this we will discuss two methods. ठीक है. So in our previous classes we already discussed the introductory part, the classification, the nomenclature of ethers. Okay, so please go and watch it out thoroughly. So without wasting any more time, let's get started. So the first method is by dehydration of alcohols. Now alcohols undergo dehydration in presence of acid, protic acid, okay, H2SO4 and H3PO4. But in this case, the reaction product, what will be the reaction product, whether it will be alkene or whether it will be ether, okay, that will depend on the reaction condition, that will depend on the temperature. किस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो, that will decide your reaction product. Okay, now you can see here, this is your ethanol. Okay, and we treated ethanol with sulfuric acid, H2SO4. So in presence of protic acid or sulfuric acid, this ethanol undergo dehydration. Dehydration matlab it will lose water molecule. Okay, it will lose water molecule. So if you carried out the temperature at 443 Kelvin, if you carried out the reaction at 443 Kelvin, if you use this temperature, then your product is ethene. Then your product is ethene, okay, alkene. And if you carried out the reaction, same ethanol and H2SO4 at 413 Kelvin, matlab at lower temperature, okay, at lower temperature, that time the product is ether. That time the product is ether. Matlab, if we want ether from alcohol, we have to carry out the reaction at lower temperature, that is at 413 Kelvin. ठीक है, temperature is very much important, please learn the temperature. Okay, and if you want ethene or alkene as a major product, that time you have to dehydrate the alcohol at higher temperature. Okay, so if we talk about the general equation or general reaction, what is dehydration of alcohol? Okay, so we use alcohol in excess. Okay, हम जो अल्कोहल है ना उसको एक्सेस में लेते हैं, दैट मीन वी यूज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल. ओके, ROH plus, now here I am writing in this way, okay, for better understanding, and this is your ROH. Now you are dehydrating this in presence of H2SO4. You are treating alcohol with sulfuric acid at what temperature? At 413 Kelvin. Okay, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसके जगह पे आपने कुछ भी टेम्परेचर लिख दिया तो दैट विल बी रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स सिंपली क्या हो रहा है, H2O का रिमूवल हो रहा है, राइट. देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो ये निकल गया आपका H2O. व्हाट्स रिमेनिंग, वी हैव R ग्रुप एंड यहाँ पे क्या है, OR ग्रुप. तो ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे, RO एंड R, राइट. तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर इथर बाय रिमूवल ऑफ H2O. ओके, सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन. अगर आप ROH दो बार नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ROH. ओके, क्लियर है. When it is treated with sulfuric acid at 413 Kelvin, it will give ether. Okay, now this is the example. Okay, now etherification, this reaction is also known as etherification because in this we are forming ether. There is a formation of ether. Okay, now in this case we can prepare simple ethers. In this case we can prepare only simple ether. Mixed ether is quite difficult to prepare by this method. I will tell you later why it is so. So etherification is the reaction in which simple ether is formed from an alcohol on heating it with concentrated H2SO4, concentrated sulfuric acid. This is very much important. और क्या हो रहा है, intermolecular dehydration हो रहा है.
क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं. ओके, सो लुक यहाँ पे इथेनॉल है. How will you prepare diethyl ether? So ethanol is treated with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin. Okay, it will give diethyl ether. By what process? By intermolecular dehydration. So अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. I told you we use ethanol in excess. तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए, right? तो ये देखो यहाँ से OH और यहाँ से H. तो ये क्या निकल गया, ये हो गया आपका H2O. तो व्हाट इज रिमेनिंग, दिया इथिल ग्रुप और यहाँ पे है आपका इथॉक्सी ग्रुप. तो ये दोनों बॉन्ड हो गए और क्या बन गया आपका डाइथिल इथर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आप यहाँ पे मिथेनॉल लेके डाइमिथिल इथर भी बना सकते हो या फिर प्रोपिल ग्रुप लेके प्रोपिल इथर भी बना सकते हो. ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस देन? First limitation is the process is mainly used to prepare simple ether. Process किस लिए use हो रहा है? Just to prepare simple ether. If we can't prepare mixed ether by this process, okay, but फिर भी हमको बनाना है mixed ether, okay, we use different mixture of alcohol. मतलब हमने लिया R1, R1 is a different alkyl group, ठीक है, और OH plus HO R2, R2 is a different alkyl group, ठीक है. तो जब दो different alcohol मिलेंगे and they treat with H2SO4 and we treated with that alcohol with H2SO4 at 413 Kelvin, right? तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, है ना, और आप बोलोगे ये R1 will bond with this OR2. ऐसा ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 O R2, राइट. तो ये तो बन गया मिक्सर था, बट इसके साथ हमको और दो प्रोडक्ट मिलेंगे एंड दैट इज R1 OR1 एंड R2 OR2, ठीक है. तो ये तीन प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा हमको प्रोडक्ट का, हमको एक पर्टिकुलर इथर नहीं मिलेगा व्हेन यू यूज डिफरेंट अल्कोहल्स, ठीक है. इफ द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट अल्कोहल इज यूज, अ मिक्सचर ऑफ थ्री डिफरेंट इथर इज obtained. And I told you what is that. Okay, R1 मतलब ये दो अल्कोहल डिफरेंट है, R1 R2 है, राइट. तो यहाँ से H2O निकलेगा. So this R1 will bond with this OR2. तो ये बन गया आपका एक इथर. तो R1 अगर मैंने बोला है हमने अल्कोहल कैसे लिया है, एक्सेस में लिया है, तो हो सकता है ना कि ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये पर्टिकुलर अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे R1OH के साथ ही रिएक्ट हो जाए, राइट. तो ये क्या बन जाएगा फिर R1OR1. हो सकता है ये वाला जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है R2OH, ये वाला दूसरे R2OH के साथ रिएक्ट हो जाए और वहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो वो कौन सा बन जाएगा, R2OR2 बन जाएगा. तो अल्टीमेटली आपको मिक्सचर मिल रहा है ऑफ थ्री डिफरेंट इथर्स एंड द सेपरेशन ऑफ दिस इथर इज डिफिकल्ट. ओके, so that's why this reaction is not used to prepare mixed ether. The reaction is only used to prepare simple ether. The reaction is only used to prepare simple ether. Keep this thing in mind. Okay, now what is the third limitation is that use of higher temperature. Now मैंने बोला है अगर आप higher temperature use करते हो, if you go beyond 413 Kelvin, right, तो क्या हो जाएगा, 443 पे हाइयर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, राइट, एलिमिनेशन हो जाएगा. सो यूज ऑफ हाइयर टेम्परेचर इज नॉट feasible. ओके, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. नाउ ये जो अल्कोहल हम ले रहे हैं ना, दिस शुड बी प्राइमरी, दिस शुड बी प्राइमरी, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो that will undergo elimination and will give alkene as a major product, ठीक है. तो whenever this dehydration of alcohol is done, the alcohol which we are using it should be primary alcohol. okay, अगर आप secondary लेते हो, tertiary लेते हो, like isopropyl लिया, tertiary butyl लिया, तो it will lead to alkene, elimination reaction हो जाएगा और वो alkene दे देगा as a major product, इथर नहीं मिलेगा. okay, so please remember what you have to use. We have to use
primary alcohols, okay, and lower temperature, okay. So this reaction is clear to everyone? Okay, so let's move further. Now we will see mechanism, how the reaction proceed, what this H2SO4 or protic acid is doing to this ethanol. ठीक है, ये इसके साथ क्या कर रहा है जो यहाँ पे इथर बनेगा at this particular temperature. Okay, so look, हमने कितने लिए, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए इथेनॉल के, right? So this is your first molecule of ethanol, CH3 CH2 OH. ऑक्सीजन के पास क्या है, there is 2 lone pair of electrons, right? And we are using H2SO4. H2SO4 is nothing but it is proton donor, right? तो यहाँ पे आ गया आपका acid H positive, right? So the first step is formation of protonated alcohol. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, that H positive is attacking on your first molecule of alcohol. ठीक है, तो ये देखो ये H positive है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन. तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, राइट? OH और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी 3 बॉन्ड बना लिए, 2 तो ऑलरेडी थे ना, एक इस कार्बन के साथ था, एक हाइड्रोजन के साथ था, अभी इसके साथ भी बन गया है. तो ये देखो, आई चीज समझ में, ये यहाँ पे बन गया, क्लियर है? नाउ दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल. नाउ इन सेकेंड स्टेप देयर इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अभी इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को जो हमने बनाया है, इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. ये कौन करेगा, ये करेगा आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, राइट? सो दिस इज योर इथेनॉल. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और क्या होगा, ये है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल. तो अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो ये वाला लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कब करेगा, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन को क्या होना है, ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं सकता, राइट? तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ के बॉन्ड पे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड क्लिव हो जाएगा और ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एज H2O, राइट? मतलब ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड पेयर लेके बाहर निकल गया. तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर लेके बाहर निकल गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज और इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन किसको जाके कहाँ पे अटैक करेगा, ये वाले कटायन पे, राइट? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. ये देखो, ये था आपका CH3 CH2 ये वाला, राइट? OH, ये देखो OH है, राइट? अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है. ये देखो बन गया बॉन्ड, राइट? सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल. तो यहाँ पे आपका क्या रिमूव हो गया, H2, यहाँ पे हुआ आपका डिहाइड्रेशन, राइट? तो अभी ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया. अभी ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या बनाना है, हमें इथर बनाना है. तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन. ठीक है, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन निकालना, ओके? तो अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी ऑक्सीजन कहाँ से बॉन्ड पेयर लेगा, यहाँ से तो नहीं ले सकता, यहाँ से भी नहीं ले सकता, इट विल टेक अप फ्रॉम दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये देखो, यहाँ ये जो बॉन्ड पेयर थी ये किसके पास चली गई, ऑक्सीजन के पास, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया एज H पॉजिटिव, राइट? सो हियर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी चला गया और ऑक्सीजन पे अभी क्या है, 2 lone pair of electron, and there is your formation of ether, diethyl ether. I hope mechanism is clear to everyone, right? पहले स्टेप में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल था और आपके पास क्या था, एसिड H2SO4. अभी देखो यहाँ पे जो H2SO4 है ना, दिस विल एक्ट एज कैटलिस्ट आल्सो
and this will act as dehydrating agent also. कैटलिस्ट क्यों? दिस विल स्पीड अप द रिएक्शन, राइट? आप देखो, आपने जो H पॉजिटिव यूज किया था एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वी आर रीजनरेटिंग इट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एज वेल एज इट विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. व्हाई डिहाइड्रेटिंग? बिकॉज ये डिहाइड्रेट कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है ना? सो दिस इज सो. नाउ यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन था आपका, इसने यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, राइट? और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने ये जो था, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लिए और ये बाहर निकल गया एज अ H2O, राइट? ये H2O. तो जब ये बाहर निकल गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि वो तो बॉन्ड पेयर लेके निकल गया. तो अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या? जी नहीं है. तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ओके, अभी ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल था, ये करेगा इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ओके, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे है आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. अभी क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे लेगा और इसको रिमूव कर देगा एज H पॉजिटिव. तो ये बन गया आपका इथर, राइट? क्लियर है? मैकेनिज्म जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू रिमेम्बर इट कि क्या हो रहा है और कैसे प्रोसीड हो रही है रिएक्शन. ओके, so I hope this much is clear. The formation of ether is nucleophilic bimolecular reaction. Okay, SN2 mechanism है, मतलब ये जब अटैक होगा ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होगा, इट विल फॉर्म बैक साइड. ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. SN2 mechanism है. ओके, so I hope that is clear to every one of you. Next method is Williamson synthesis of ether. Now this is name reaction. Okay, this is very much important. Please keep this thing in mind. Williamson synthesis of ether. अभी इस reaction में क्या हो रहा है, when alkyl halide, when alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide, okay, to give dialkyl ethers or alkyl aryl ethers. Okay, so in this, by using Williamson synthesis we can prepare both simple ether as well as mixed ether. ठीक है, हम दोनों ही इथर इससे बना सकते हैं. पहले वाले इससे हम सिर्फ कौन सा इथर बना सकते थे, सिंपल इथर बना सकते थे, राइट? नाउ दिस रिएक्शन आल्सो इन्वॉल्व SN2 अटैक. किसका SN2 अटैक? अल्कोक्साइड आयन का. किस पे? प्राइमरी अल्किल हलाइड पे. ठीक है, SN2 मैकेनिज्म सबको याद है, क्या होता है SN2 मैकेनिज्म में? ओके, वी विल डिस्कस इट. पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं क्या है. ओके, now this is a general reaction. Okay, now this is sodium alkoxide, RO negative, Na positive. When this is treated with alkyl halide, R dash X. Okay, तो क्या होगा, this Na and this halide ion, right, X negative will combine to form NaX. और ये R कहाँ चल जाएगा, ये अल्कोक्साइड है, जब ये Na यहाँ से निकल जाएगा तो ये अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, राइट? तो ये अल्कोक्साइड आयन किस पे अटैक कर देगा, फिर आपके R डैश पे, और ये बन गया आपका अल्किल इथर. अल्किल इथर मतलब दोनों R ग्रुप जो है दैट इज इथर ग्रुप. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब दिस Ar इज द एरोमेटिक रिंग. ओके, फिनॉक्साइड मतलब ये फिनॉल था पहले, और फिनॉल में, फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप में से, ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया, Na ला लिया. Okay, so that is sodium phenoxide. When this is treated with alkyl halide, तो ये Na और ये X बाहर निकल गया. अभी ये जो फिनॉक्साइड है ये यहाँ पे अटैक करेगा अल्किल ग्रुप पे, and there is formation of alkyl aryl alkyl ether, alkyl aryl ether. Okay, ARO dash. Okay, this much is clear to everyone. सिंपल और मिक्स इथर दोनों ही इस रिएक्शन से हम बना सकते हैं. कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो व्हेन अल्किल हलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड, तो इट विल गिव योर रिस्पेक्टिव इथर. और रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक. किसका SN2 अटैक? द अटैक ऑफ अल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्किल हलाइड. ओके,
तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. नाउ हाउ विल यू प्रिपेयर डाइमिथिल ईथर? हाउ विल यू प्रिपेयर डाइमिथिल ईथर? तो हम क्या लेंगे? इफ यू वांट टू प्रिपेयर डाइमिथिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो हमको चाहिए अल्किल हलाइड और क्या चाहिए हमको? अल्कोक्साइड, है ना? तो हम लेंगे मिथिल ब्रोमाइड एंड सोडियम मिथॉक्साइड. ठीक है, this is your methyl bromide. When treated with sodium methoxide it will give dimethyl ether. तो देखो यहाँ से Br और यहाँ से Na, तो ये हो गया आपका NaBr. What's remaining? CH3O CH3, तो ये बन गया आपका dimethyl ether, right? When you treat, if we want to prepare ethoxybenzene, okay, sorry, ethoxybenzene, okay, IUPAC name is ethoxybenzene, and if we want to prepare ethyl phenyl ether, ठीक है, ethyl phenyl ether, तो हम क्या करेंगे? So we will take sodium phenoxide. हम क्या लेंगे? हम लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड एंड वी ट्रीट इट विथ इथिल ब्रोमाइड. हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? इथिल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे, राइट? तो ये देखो यहाँ से Br और यहाँ से Na will remove as NaBr. तो अभी ये क्या था? ये फिनॉक्साइड आयन था. ये कहाँ पे अटैक करेगा? दिस विल अटैक एट दिस इथिल ग्रुप और ये बन गया आपका इथिल फिनिल इथर, राइट? तो हमेशा याद रखना, जब भी आप अल्किल अरिल इथर बनाओगे यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर, तो आप सोडियम फिनॉक्साइड अल्कोक्साइड जो होगा ना, तो दैट विल ऑलवेज फिनॉक्साइड. ओके, मतलब आप कभी फिनिल हलाइड अरिल हलाइड नहीं ले सकते. ओके, कंसिडर यहाँ पे है आपका CH3ONa, ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड एंड ब्रोमोबेंजीन. दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. ओके, ये रिएक्शन होगी ही नहीं. आप बोलोगे क्यों नहीं होगी? यहाँ से भी तो Na है और यहाँ पे Br है, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी कि ये जो अरिल हलाइड्स होते हैं दे आर नॉट रिएक्टिव, मच रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमने इसके रीजंस भी देख लिए, राइट? जब हमने हेलो अनीस पढ़ा था, तो इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है. इसीलिए वी never use aryl halides in Williamson synthesis of ether. If we wanna prepare alkyl aryl ether, तो जो हलाइड रहेगा ना वो हमेशा अल्किल हलाइड ही रहेगा, ठीक है? और ये जो रहेगा दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. देन एंड देन ओनली रिएक्शन इज पॉसिबल. ये अगर आप ऐसे लेते हो CH3ONa, मतलब अल्कोक्साइड पे अल्किल ग्रुप लेते हो और हलाइड पे अरिल ग्रुप लेते हो, तो रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है? अरिल हलाइड्स डू नॉट undergo Williamson synthesis of ether. Please keep this thing in mind. Okay. Now tell me, how will you prepare ethyl methyl ether? हम क्या करेंगे? ethyl methyl ether हमें बनाना है, ठीक है? तो हम C2H5ONa लेंगे, ओके, प्लस CH3Br लेंगे. तो क्या होगा? NaBr बाहर निकल जाएगा and there is C2H5 oxygen CH3, right? OCH3. और ये जो है आपका this Na and this Br is a byproduct. So this is your ethyl methyl ether. Okay, so I hope this much reaction is clear to every one of you. Okay, now we will see limitations for Williamson synthesis of ether. Okay, now अभी जो हमने देखा preparation of dimethyl ether, okay, that is very simple. अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो आप कोई भी अल्कोक्साइड लो, कोई भी हलाइड लो, no matter what. Okay, but if we want to prepare mixed ether, अगर हमको mixed ether बनाना है तो देयर शुड बी द प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, जो अल्कोक्साइड हम लेंगे, जो हलाइड हम लेंगे, दैट शुड बी प्रॉपर वन. ओके, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी रिएक्शंस सही से नहीं होगी. वॉट एवर द प्रोडक्ट वी रिक्वायर्ड we won't get it. Okay, so जो भी हम लेंगे, proper choice of reactants, namely alkyl halide and sodium alkoxide is necessary. Okay, this is the first limitation.
सेकेंड वन इज अरिल हलाइड्स डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अरिल हलाइड लोगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. थर्ड इज जो बेस्ट यील्ड ऑफ मिक्स्ड ईथर, मतलब इफ वी वांट टू प्रिपेयर मिक्स्ड ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो जो बेस्ट यील्ड है, मतलब प्रेफरेबली जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, दैट विल बी स्मॉलर अल्किल हलाइड एंड अल्कोक्साइड विथ लार्जर अल्किल ग्रुप. ठीक है, अल्किल हलाइड कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और अल्कोक्साइड कैसा होना चाहिए, लार्जर अल्किल ग्रुप. ओके, मतलब प्राइमरी अल्किल हलाइड और टर्शरी अल्कोक्साइड. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना स्मॉलर अल्किल हलाइड है, अल्कोक्साइड विथ लार्जर ग्रुप. ओके, प्राइमरी अल्किल हलाइड एंड टर्शरी अल्कोक्साइड. मतलब अगर हमको बनाना है टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर, ठीक है, या फिर इथिल इथर, चलो यहाँ पे इथिल है तो इथिल ले लेते हैं. ओके, टर्शरी ब्यूटिल इथिल इथर, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा कौन सा वाला लेंगे, हम इथिल ब्रोमाइड लेंगे. ओके, प्राइमरी अल्किल हलाइड कौन सा है, इथिल है, राइट. ये तो टर्शरी अल्किल हलाइड है ना, ये तो टर्शरी ग्रुप है ना, तो इसका हलाइड तो टर्शरी अल्किल हलाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हमेशा इथिल ब्रोमाइड लोगे तभी रिएक्शन फिजिबल होगी. इफ यू टेक टर्शरी ब्यूटिल हलाइड CH3 by 3CCl, तो रिएक्शन विल नॉट proceed further. Okay, the reaction is not feasible. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको एक तरफ आपका टर्शरी ग्रुप है और एक तरफ आपका प्राइमरी ग्रुप है और उसका इथर आपको बनाना है, तो जो आप रिएक्टेंट्स लोगे उसमें प्राइमरी हलाइड होगा, प्राइमरी अल्किल हलाइड आप यूज करोगे, और जो टर्शरी होगा दैट विल बी योर अल्कोक्साइड. देखो, अगर आप प्राइमरी अल्कोक्साइड और टर्शरी हलाइड लोगे तो रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है. द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, राइट. बट ये वाला अगर ऐसे लेते हो तो रिएक्शन इज फिजिबल. ठीक है, लास्ट लिमिटेशन इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हलाइड, ये वाला. ठीक है, अगर आप ये लेते हो टर्शरी हलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो क्या हो जाएगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा. देयर इज कॉम्पिटिशन, ठीक है, बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड elimination. Okay, and reaction give an alkene instead of ether. Okay, elimination हो जाएगा और क्या बन जाएगा, alkene बन जाएगा instead of ether. Clear है, limitation समझ में आए. The first limitation is aryl halide do not give Williamson synthesis, तो आप aryl halide use नहीं कर सकते. ठीक है, we can use sodium phenoxide but we can't use aryl halide. Okay, नेक्स्ट इज मिक्स्ड इथर. जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रॉपर चॉइस ऑफ अल्किल हलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड इज वेरी नेसेसरी. ओके, थर्ड इज द बेस्ट यील्ड ऑफ मिक्स्ड इथर जो है दैट विल बी गेन whenever we use smaller alkyl halide, that means primary alkyl halide and tertiary alkoxide. सेकेंडरी एंड टर्शरी हलाइड आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, इथर नहीं बनेगा. इंस्टेड ऑफ इथर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, देयर इज अ एलिमिनेशन reaction. Okay, now again as I said, Williamson synthesis of ether proceed via SN2 mechanism, right. तो अभी देखते हैं SN2 mechanism होता क्या है. SN2 mechanism में होता क्या है, याद है आपको SN2 mechanism में क्या होता है, is there anyone कि SN2 mechanism में क्या होता है. Okay, we will see here what is SN2 mechanism, right. अभी देखो SN2 mechanism क्या होता है, जिसमें बैक साइड से अटैक करता है. कौन अटैक करता है बैक साइड से, आपका न्यूक्लियोफाइल. तो मुझे एक बात बताओ, उसमें न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है तो आपका जो ब्रोम हलाइड है वो पहले रिमूव हो जाता है क्या, जी नहीं होता है, राइट. तो दिस इज योर OH नेगेटिव, राइट. और ये है आपका मिथिल हलाइड. ओके, CH H एंड यहाँ पे आपका Br. ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, दिस विल अटैक दिस कार्बन
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम बैक साइड. ओके, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी Br प्रेजेंट है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, राइट जिसमें ये OH बॉन्ड कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन. सो द अटैक इज बैक साइड अटैक. ये बैक साइड अटैक कब पॉसिबल है? जब इस कार्बन पे ज्यादा हिंड्रेंस ना हो, है ना. अगर इस कार्बन को बहुत सारे अल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये बड़े बड़े ग्रुप इसको आने देंगे क्या? इसको जगह देंगे क्या? नहीं ना. लुक, घर में चोर चोरी करने आ रहा है, राइट और घर पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, बहुत वॉचमैन है, हर डोर पे वॉचमैन है, तो ये स्टोर को आने देंगे? जी नहीं आने देंगे. लेकिन थोड़ी लूज सिक्योरिटी है, ठीक है कहीं पे नहीं है, कोई चाय पीने चला गया, कोई बाहर चला गया, तो ये आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? जी नहीं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रुप है. ओके, तो ये इसको आने देंगे, बैक साइड अटैक करने देंगे, एंड इट इज पॉसिबल टू फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन, राइट. तो ये हो जाएगा आपका HO और ये हो जाएगा आपका कार्बन, और CBr बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, राइट. सो दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म, है ना. तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर. ठीक है, अभी देखो, दिस इज योर टर्शरी अल्कोक्साइड. नाउ दिस रिएक्शन इज फिजिबल एंड दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. वही हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों है. ठीक है, नाउ दिस इज टर्शरी अल्कोक्साइड एंड दिस इज योर प्राइमरी अल्किल हलाइड. ओके, सो देखो, बैक साइड अटैक होना है. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोक्साइड इज योर न्यूक्लियोफाइल. ये तो Na पॉजिटिव है ना, ये बाहर निकल जाएगा, राइट. एंड अल्कोक्साइड इज योर न्यूक्लियोफाइल. तो ये किस पे अटैक करेगा? दिस विल अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. ये Br अटैच्ड है, राइट. तो Br क्या करेगा? Br विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट. और ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. तो अभी ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन को. इस कार्बन को क्या अटैच्ड है? 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, राइट. मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है? जी कर सकता है. क्यों? क्योंकि इस कार्बन को बहुत बड़े बड़े ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, राइट. और बाकी तो 2 हाइड्रोजन ही है जिनकी साइज बहुत छोटी है, राइट. तो ये ग्रुप यहाँ पे अटैक कर सकता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल इथिल ईथर, राइट. लेकिन इफ अगर हमने टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया और सोडियम इथॉक्साइड लिया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? इथॉक्साइड है ना. तो ये NaBr तो निकल गया, राइट. और दिस इज योर अल्फा कार्बन. तो ये अल्कोक्साइड को कहाँ अटैक करना है? इसको यहाँ पे अटैक करना है, क्योंकि ये Br बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना. तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे. अभी ये ऑलरेडी इथिल ग्रुप, इस कार्बन को क्या अटैच है? 1 2 3 मिथिल ग्रुप, राइट. अल्किल ग्रुप अटैच है जिनका साइज बड़ा है. जिनका साइज कैसा है? बड़ा है. मतलब इस कार्बन के सराउंडिंग में बहुत टाइट सिक्योरिटी है, राइट. जगह ही नहीं है किसी को आने के लिए, राइट. अभी ये कार्बन कहाँ से अटैक करने वाला है? वेट, दिस कार्बन विल अटैक फ्रॉम बैक साइड ना. सो ये एरो में बैक साइड से दिखा देती हूँ. ओके, देखो, दिस विल गो एंड अटैक फ्रॉम दिस साइड, बैक साइड. तो ये इसको आने देगा क्या बैक साइड से? जी नहीं आने देगा, क्योंकि देखो सामने तो ये बहुत बड़ा वाला ग्रुप प्रेजेंट है, राइट. ये तो अभी निकला भी नहीं है और इसने अटैक कर दिया, है ना. तो अभी क्या होगा? ये ऑलरेडी यहाँ पे भी बड़े बड़े ग्रुप है, तो दिस विल इंटरवीन इन द रिएक्शन, राइट. ये इसको आने नहीं देंगे ग्रुप को, तो ये अटैक तो हो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. बट ये जो अल्कोक्साइड आयन है, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दिस विल एक्ट एज बेस. दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमने पढ़ा था, राइट. अल्कोक्साइड आयन इज अ बेस. तो बेस क्या करता है? बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है. अभी ये हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? दिस विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम योर बीटा कार्बन. कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? बीटा कार्बन से. अभी अल्फा कार्बन समझ में आ गया सबको?
अल्फा कार्बन कौन सा है, लुक दिस इज अल्फा, तो ये कार्बन कौन सा हुआ, बीटा, और इसको जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे CH3 है, लुक मैं यहाँ पे CH2 कर देती हूँ और एक हाइड्रोजन ऐसे कर देती हूँ, ओके। तो ये अल्कोक्साइड, नाउ दिस विल एक्ट एज अ बेस। अभी ये तो अटैक नहीं करने दे रहा, तो ये क्या सोचेगा, चलो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इथेनॉल बना देते हैं, ओके। तो ये बन गया आपका इथेनॉल। Na विल कंबाइन विद दिस Br, तो ये बन गया आपका NaBr, और यहां से जब हाइड्रोजन निकला, ओके, तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ओके। तो ये बन गया आपका अल्कीन, ठीक है, 2 मिथिल प्रोपीन, अंडरस्टूड। अटैक क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में बहुत बड़े बड़े अल्किल ग्रुप है, दैट विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, and that is the reason why they will not allowing your nucleophile to come and attack from back side, okay. So ये alkoxide क्या करेगा, this will extract this hydrogen from beta carbon, okay, and from alcohol, so resulting into the formation of alkene. क्लियर है, हमें रिएक्टिविटी पता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, दैट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड, right, they will react much more better than secondary and then tertiary, ठीक है। SN1 में इसका अपोजिट है ना, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो यही चीज आपको याद रखनी है, इसी से याद रखना है विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस में SN2 होता है, कौन से दो रिएक्टेंट है, अल्किल हैलाइड है और कौन सा अल्कोक्साइड है, ठीक है। अभी SN2 में हम क्या करते हैं, SN2 में हमेशा कौन सा हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, तभी रिएक्शन बहुत अच्छे से प्रोसीड होती है ना। तो जब आप प्राइमरी हैलाइड लोगे तभी आपका इथर बनेगा, जब आप प्राइमरी हैलाइड नहीं लोगे तब आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी लोगे तो अल्कीन बनेगा, ठीक है। और जब आप प्राइमरी अल्किल हैलाइड लोगे तो ऑब्वियसली अल्कोक्साइड कौन सा होगा, आपका दूसरा अल्किल ग्रुप जो आपको इथर में चाहिए, राइट, तो दैट विल बी सेकेंडरी और टर्शरी, क्लियर है। तो अल्कोक्साइड कैन बी सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट अल्किल हैलाइड शुड ऑलवेज बी प्राइमरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथर, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर प्राइमरी हैलाइड लिया है आपने तो ही रिएक्शन फिजिबल है, अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड लिया है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ओके। सो आई होप विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इज क्लियर, ठीक है। लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर मिथिल टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, आप कैसे बनाओगे, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, और आपको ऑप्शन दे देंगे। तो दैट टाइम यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड रहेगा और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रहेगा, ठीक है। सो वही चीज आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करने हैं, ओके। क्वेश्चंस भी ऐसे ही आ जाएंगे, what happened when tertiary butyl chloride is treated with sodium methoxide, so there will be no reaction na, right, but if same methyl bromide is treated with tertiary butoxide, there is a formation of tertiary butyl methyl ether, okay, यही चीज आपको याद रखनी है, fine। So this is all about the preparation of ethers. Next is physical properties of ethers, okay। So what is the nature of ether, तो lower members जो है dimethyl ether and ethyl methyl ether, they are gases, they are highly volatile, okay, highly inflammable, and the other ether are colorless liquid, okay। Now smell, they have particular odor which is known as ether smell, okay, they have characteristic smell and it is very pleasant, it is very pleasant, okay। Now, what is about solubility? Whether ethers are soluble in water or not? So yes, ethers are soluble in water. Their solubility is resembles to those of alcohol of same molecular mass. वो वैसे ही soluble है जैसे alcohol soluble है in water. If we consider alcohol and ether having same molecular mass, तो दोनों की solubility जो है near about same आएगी, okay? And this is due to the fact that इसका रीजन क्या है, दैट इज बिकॉज इथरल ऑक्सीजन ऑफ इथर, दिस ये वाला जो है ना, दिस ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन, विथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
ओके, सो अल्कोहल भी ऐसे ही बॉन्ड बनाता है ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ. सो इथर का ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मिसिबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर. Okay, now what about polarity, whether ether molecule is polar or not? So yes, ether is polar, it has particular dipole moment. If we consider diethyl ether जो है ना, उसका dipole moment is near about 1.18 dB. This is the dipole moment of diethyl ether. Okay, now ether is a bent molecule. ये देख रहे हो आप, ether is bent molecule. देखो R R यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये bent है. Okay, and the bond angle between this, ये जो bond angle है ना, this is कितना है ये 110 degree, 110 degree, and this bond angle is greater because of this two larger group. ये दो बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसीलिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा है. ओके, now ether possess a particular dipole moment. Ether जो है ना, that will possess a particular dipole moment. What is dipole moment, right? अच्छा, मुझे ये बताओ, if the molecule contain polar bond, तो वो पोलर हो जाता है क्या? तो वो पोलर मॉलिक्यूल है क्या? नहीं. ठीक है, इफ अगर आपके कंपाउंड, अगर आपके मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, दैट डजंट मीन इट मेक्स द मॉलिक्यूल पोलर. ठीक है, आपका CO2 आप सबने देखा है, राइट? ऐसा है स्ट्रक्चर, इसमें पोलर बॉन्ड तो है, बट ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. क्यों नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज इसका जो डायपोल मोमेंट है ये जीरो है, राइट? दिस टू ये जो 2CO बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बट डायपोल मूवमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए ना. तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड देयर नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, एंड दैट मेक्स इट नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बट जो इथर है ना, इसका एक पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट है, राइट? बेंट मॉलिक्यूल है. ओके, एक पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट है इन दिस डायरेक्शन. ओके, इस डायरेक्शन में उसका एक नई पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट है, एंड दिस 2CO बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बिकॉज दैट डायरेक्शन आर नॉट अपोजिट. ठीक है, जो जैसा CO में है, दैट्स व्हाई दिस इज पोलर मॉलिक्यूल. इथर इज पोलर मॉलिक्यूल. और डाइथिल इथर का क्या है? डायपोल मोमेंट 1.18 dB. सो दिस इज पोलैरिटी ऑफ इथर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? Now the boiling point of ether are comparable to those of alkanes of comparable molecular masses. मतलब ether और alkane का जो boiling point है वो near about same है, near about same है. We can also say that कि थोड़ा सा ज्यादा होता है. alkane का कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, but in most of the books you can find out that ether का जो molecular जो boiling point है वो alkanes का और ईथर का इक्वल होता है. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा कम. ओके, बट इट इज मच लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल. लेकिन ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से बहुत कम है. ऐसा क्यों? अल्कोहल से कम क्यों है? बिकॉज ether can form hydrogen bond, ether cannot form hydrogen bond with themselves. अल्कोहल में हमने देखा था, अल्कोहल मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद themselves, है ना? एसोसिएटेड है, ऐसा देखा था, राइट? बट इथर में ये पॉसिबल है क्या? जी नहीं, इथर में ये पॉसिबल नहीं है. एंड सेकेंड इज द डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस इन इथर आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स. ये इतने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते टुवर्ड्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट. जो बॉइलिंग पॉइंट है इथर का, दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट. तो सोल्यूबल है? जी हाँ, सोल्यूबल है. बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? तो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से कंपेरेबल है, अल्कोहल से बहुत कम है. क्यों कम है? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद themselves, and boiling point of ether increases with increase in molecular weight. So here are some example. Look, this is n-pentane, this is alkane, this is ether, ethoxyethane, and this is butane 1-ol alcohol, right? So here are the boiling points. So आप देख सकते हो अल्कोहल से इथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है,
right? 390 and 307, and this is near about same, 309 307. okay, ज़्यादा difference नहीं है. So this is all about boiling point and solubility and polarity. okay, now जैसे जैसे solubility में जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा वैसे वैसे solubility decrease होगी, right? क्योंकि ये वाला group जो है ये non polar group है, तो ये this will not increase the solubility, right? So this is the thing, this is the properties of ether which you have to keep in mind. okay, so this is all about today. In next lecture we will discuss about the chemical properties of ethers. okay, till then keep learning. See you all in next lecture. okay, thank you. Bye bye.